Hello, Jai Hind, and good evening to all ladies and gentlemen. Once again, I'm back with another and amazing content with full of energy. And I hope, guys, you must have seen my all previous lecture. And if you have not seen my all previous lecture, then I'll suggest you please go back and watch my all previous lecture. And after that, watch this one. Why? Because in 2024, we have to learn English anyhow at any cost. Okay, so actually, I'm not demanding anything. These all lectures are my free of cost. So after watching this video, please go back and visit my all playlist. And after that, you have an idea. You have a right approach how to start study English grammar. Okay, so actually, in this video, we are going to talk about transitive verb or intransitive verb. What we are going to talk about? Transitive verb or intransitive. If you give you 100% on this platform at regular basis, then I can give you guarantee on a stamp paper, guys. Definitely, you are going to rock. Definitely, you are going to start. You are going to change your life. You are going to change your mindset. So that's why. But what you will have to do with me, you have to give you 100%. You have to give you 100%. You half an hour on regular basis on the same platform, YouTube, CMC Mishra family. Definitely, after that you have a good approach you will have. If you ask to me, so what do you want to do? Actually, guys, I'm not here only for English grammar. I'm here for rectify. I'm here to make you understand how to start speaking, how to start writing, how to start listen, how to start each and everything. It means I'm talking about whole transformation. Actually, I'm talking about whole transformation. So in this video, we are going to talk about transitive verb or intransitive verb. Okay. So before going to start, so let me check the energy of the class, and after that your class would be start. Okay. So are you guys ready? Yes, sir. Are you okay? Yes, sir. Are you energetic? Yes, sir. Are you ready to learn? Yes, sir. So first tell me, how is the Josh? Yes, okay, very nice. So let's start this video. We are going to talk about transitive verb. Online, just feel them. Whatever I'm going to speak, just feel them. I'm asking you. You know very well. हम एक ऑफलाइन फीलिंग देना चाह रहे हैं आपको. इस नौटंकी में ऑफलाइन फीलिंग देना चाह रहे हैं. और इसमें एड वोड नहीं लगाए, लास्ट में एड लगाते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे हम? ट्रांजिटिव वर्ब की. से लाउडली विद मी. क्या चीज की बात करेंगे बच्चे? ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे. इस ट्रांजिटिव वर्ब में बच्चे बात ऐसा होने वाला है जैसे हम एक एग्जांपल पर ले देते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आप तो जानते हैं इसी फंडे को हम लोग सीखने वाले हैं. यू नो गाइस, हम लोग इसी फंडे पे काम करने वाले हैं. यदि इसको हम लोग सीख लेंगे, यदि इसके सारे प्रोसेस को सीख लेंगे, तो हम लोगों के पास हो जाएगा इंग्लिश का अच्छा मेल, और अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना हो जाएगा बच्चों का वेरी नाइस. ऑनलाइन आपसे बात करना, आप सुन रहे हैं ना? कॉपी पेन है? अच्छा, कॉपी पेन निकालो. पहले कॉपी पेन निकालो जल्दी. ये आपको जो दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो देखिए, हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चे. याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा, सब्जेक्ट के द्वारा हमने बताया था कि सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाएगा. सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? एक्शन किया जाएगा. यदि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव यदि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यदि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो समझ लेना वो ट्रांजिटिव वर्ब है. कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब. समझ लेना कैसा वर्ब है बच्चे? ट्रांजिटिव. यदि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन से ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो समझ लेना वह इंट्रांजिटिव वर्ब है. नहीं समझ में आया? एग्जांपल से समझाते हैं. जैसे क्या नाम है आपका? सूरज. हम आपका नाम लेते हैं. सूरज इट्स एन एप्पल. अच्छा विनय सर, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए एग्जांपल पेश किए हैं. सूरज इट्स एन एप्पल. यानी इसका मतलब क्या बच्चे? सूरज एक आम खाता है. सूरज एक आम. अच्छा, इस सेंटेंस में सॉरी सेब खाता है. अच्छा, सेंटेंस में सूरज जो है सब्जेक्ट है कि नहीं है हमारा? सूरज के द्वारा एक्शन क्या चीज का किया जा रहा है? खाने का किया जा रहा है.
अच्छा, तो इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, है ना ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो सूरज इस आम को जब खाएगा, इस सॉरी इस सेव को जब खाएगा, तो सेव जो है बच्चे, आप बताइए वो सेव छोटा होते जाएगा या बड़ा होते जाएगा? सूरज जब सेव पे प्रहार करेगा तो सेव छोटा होगा या बड़ा होगा? यानी सूरज के एक्शन से ऑब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सूरज के एक्शन से जब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हमारा प्रभावित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वर्ब कैसा है? हमने बताया क्या? हमने अभी अभी आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा यदि किए गए एक्शन से, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन से यदि ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। से लाउडली में क्या कहते हैं उसे? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा, हमने बताया एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं विनय सर, इस ध्यान से इस वीडियो को देखें। विनय सर आपके लिए खासकर इसको डिजाइन कर रहे हैं। विनय सर इट्स एन एप्पल, सॉरी मैंगो लिख देते हैं। अभी एप्पल खिलाए हैं सूरज को, तो यहाँ पे मैंगो लिख देते हैं। एक बात बताइए, विनय सर के द्वारा एक्शन क्या किया जा रहा है? खाने का। क्या खाने का एक्शन किया जा रहा है? ये विनय सर सब्जेक्ट हो जाएंगे इस सेंटेंस के। अच्छा, विनय सर के द्वारा जो एक्शन होगा हमारा, तो विनय सर के द्वारा किए गए एक्शन से आम पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्रभाव जब पड़ेगा तो एक कैसा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आया बात समझ में? ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं नीतीश बोल रहा है हमारा नाम नहीं लिखना है, हम यहाँ पे लिखते हैं नीतीश गोज टू मार्केट। क्या लिखते हैं बच्चे? मार्केट। तो ध्यान रखिएगा, नीतीश कहाँ जाता है? तो नीतीश के द्वारा एक्शन क्या हो रहा है? बाजार जाने का। तो क्या नीतीश के बाजार जाने से मार्केट में सब्जी सस्ता बिकने लगता है ना? ऐसा तो नहीं कि नीतीश के बाजार जाने से बाजार में अफड़ा तफड़ी मच जाता है, ऐसा भी नहीं है। यानी नीतीश के किए गए एक्शन से ऑब्जेक्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको बेसिकली हम ऑब्जेक्ट कहेंगे भी नहीं। जिस पे प्रभाव, जिस एक्शन से ऑब्जेक्ट पे अदर वर्ड पे प्रभाव नहीं पड़ता उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? बात समझ में आ रहा है? आ रहा है गाइस? आर गेटिंग माय पॉइंट ऑनलाइन? समझ रहा है ना? अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, तो हमने अभी अभी क्या जाना कि यदि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं करता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेते हैं अनुष्का laughs at you, और यहाँ पे लेते हैं अनुष्का laughs at night। हम यहाँ पे लेते हैं बच्चे अनुष्का, वही विराट कोहली की वाइफ, बेटर हाफ की बात कर रहे हैं। अनुष्का आप पे हंसती है। अनुष्का क्या करती है? आप पे हंसती है। तो आप बताइए आपको प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है ना? या तो आपके मन में खुशी होगा या मतलब गुस्सा आएगा। यदि वो आपको क्या बोलते हैं क्रिटिसाइज करने के भाव से हंस रही है तब आपको गुस्सा आएगा। यदि प्यार से हंस रही है तो आपको मजा आएगा अंदर अंदर। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये अनुष्का रात में हंसती है, यहाँ पे तो है यू, यानी इसके हंसने से आप पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? प्रभाव पड़ता है ना? इसके हंसने से प्रभाव आप पे पड़ता है, या तो गुस्सा आएगा। बात समझ रहे हैं? या आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अनुष्का रात में हंसती है। कब हंसती है? अनुष्का, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक था। अनुष्का laughs at night, अनुष्का रात में हंसती है। तो एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं कि रात में बारिश होना चालू हो जाता है, ऐसा तो नहीं कि रात चांदनी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो नहीं कि रात दिन में बदल जाता है। पर ऐसा नहीं जब होता है तो यही laughs हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। तो हमने अभी अभी एक चीज देखा बच्चे, सुनिए क्या। अभी अभी इसमें एक चीज दिखाई दिया, जानते हैं क्या?
इम्पैक्ट जो है ना, इम्पैक्ट जो है दो तरीका से, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और एक है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। समझ रहे हैं? डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है इससे ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। डायरेक्ट क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अनुष्का लाफ्स एट यू, ये अनुष्का जो हंसती है इस पे डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट कोई प्रभाव, इनडायरेक्ट इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने अभी आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह सब है जिससे ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ता है, और जिस पे नहीं पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, वह हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट। और जिससे ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ता है वह ट्रांजिटिव, जिस पे नहीं पड़ता है वो इनट्रांजिटिव। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अनुभव, क्या नाम है आपका? अनुभव गोज टू दिल्ली। अनुभव कहाँ जाते हैं? अनुभव के द्वारा एक्शन क्या किया गया? कहाँ जाने का? अच्छा, तो दिल्ली अनुभव जाते हैं, तो क्या उसके बाद दिल्ली पहुंचते पहुंचते जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाती है क्या? जनसंख्या का काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं कि दिल्ली आगरा बन जाता है, दिल्ली कानपुर हो जाता है। जब ऐसा नहीं होता है तो यह बेसिकली दिल्ली हमारा है क्या? ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट उसको करते हैं बच्चे जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो बहुत बड़ा होता है, जो बहुत बड़ा, बहुत विशाल होता है। जैसे रात को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। यानी देखें आप, यहाँ पे सेम वर्ब है, यहाँ पे भी लाप्स है, यहाँ पे भी लाप्स है, पर यहाँ पे लाप्स ट्रांजिटिव का काम कर रहा है, यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? इनट्रांजिटिव का काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? इनट्रांजिटिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, नाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको केवल हम क्या कर सकते हैं? और कॉम्प्लीमेंट हम बताएं क्या? कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। समझे? विशाल कॉम्प्लीमेंट बहुत विशाल होता है। आ रहा बात समझ में? तो ट्रांजिटिव वर्ब आया समझ में या नहीं आया? अब फर्स्ट 10 डेज हम कुछ भी पढ़ाने वाले नहीं है, वार्म अप क्लास है हमारा। कैसा क्लास है? वार्म अप क्लास है। तो हमने आपको बताया कि सब डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मिलता है हम लोगों को। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट में एप्पल को कोई खा रहा होता है तो एप्पल पे डायरेक्ट दिख रहा होता है, और कोई किसी पे हंस रहा होता है तो दिखता नहीं है, वह बच्चे क्या होता है? दिखता नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है? हमने इस स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश किया कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन से यदि वो ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? और सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन से, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन से यदि ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे पास हो जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली कहलाता ही नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आ रहा बात समझ में? अच्छा, उस स्थिति में यह वर्ब जो होता है ट्रांजिटिव नहीं होता है, कैसा वर्ब हो जाता है? इनट्रांजिटिव या नॉन ट्रांजिटिव, जिसको हमने बताया था आपको। आ रहा बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और निकल के आता है, जानते हैं क्या? कि वर्ब जो है ना बेसिकली दो तरीका का हो रहा है। एक ऐसा वर्ब हो रहा है जो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब हो रहा है। और एक ऐसा वर्ब हमको मिल रहा है जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर है, जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये तो ऑब्जेक्ट को ले रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यह ले नहीं रहा, डायरेक्ट से पास हो जा रहा है। बात समझ रहा है? तो ऑब्जेक्ट जो टेकर वर्ब होता है ना, जो ऑब्जेक्ट को लेता है, याद रखना वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। कैसा वर्ब कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और याद रखना जब आगे पढ़ेंगे ना तो इसी का पैसिव वॉइस बनता है, इसी का पैसिव वॉइस इसी का बनता है बच्चे। अरे मत समझ में? जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है वो हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? और कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसका हम पैसिव नहीं बनाते, इसका पैसिव वॉइस
नहीं बनाता है। याद रहेगा आपको। हालांकि हम कोई वॉइस नरेशन की बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपको याद दिलाते चल रहा है जो जो मिल रहा है इस रास्ते में, जो जो मिल रहा है हम सब बताते चल रहे हैं। तो पिछले क्लासों में हमने आपको बताया सब्जेक्ट को कैसे मॉडिफाई, सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कैसे जाने, कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, ये हमने पिछले क्लास में 3-4 क्लास में बता दिया। ऑनलाइन आपसे भी बोल रहा है, पिछले क्लास में सब्जेक्ट को बता दिया हमने। उसके बाद हमने आपको बताया कि वो बेसिकली 2 तरीका का होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसको हमने बताया। और अब बता रहे हैं मेन वर्ब। किसको बता रहे हैं? मेन वर्ब में हमने रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब की चर्चा पिछले क्लास में किया है। यदि आप नहीं देखे और पहली बार देख रहे हैं, हेलो, यदि आप पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे जाके पीछे जरूर विजिट करें और प्ले लिस्ट में बहुत शानदार तरीका से हम बनाए हैं, आप उसको विजिट करें। और स्पोकन, यदि इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली दिस चैनल इज फॉर यू गाइज। You can rectify your mistake and refine your fluency. If you wanna speak like fluent English speaker, if you wanna become impactful English speaker, this video, this channel is for you guys. और इस क्लास में हमने बताया आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात किया। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम आशा करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में आया होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब भी समझ में आया होगा। और अगले क्लास में हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब की और इनफाइनाइट वर्ब की। किसकी बात करेंगे? और थोड़ा सा ऐड लगा देते हैं, जाते जाते ऐड या लगा देते हैं। इसी 15 जनवरी से, यदि आप फेस टू फेस ऐसे आमने सामने आकर क्लास करना चाह रहे हैं ना, तो इसी 15 जनवरी से हम हर एक क्लास के लिए नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। आप जरूर आए, उसमें पार्टिसिपेट करें और आकर फेस टू फेस पढ़ने। फेस टू फेस जब आमने सामने आप बैठेंगे, यदि आप हमारे आसपास से है ना, तो आप और अच्छा महसूस करेंगे। और कम्पिटेटिव बैच भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जो DLED 2024 में जो एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास कर हम डिजाइन कर रहे हैं। हालांकि ये किसी एग्जाम पर्पज से हम वीडियो को बना ही नहीं रहे हैं। इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश सीखने का एक सही अप्रोच हम बता रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसमें कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो हम लोग हिट करेंगे नहीं, पर कब, इट विल टेक सम टाइम, समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप कंटिन्यू, हमने बताया क्या शुरू में, इफ यू गिव यू 100%, नो सेमिनार, नो वेबिनार, ओनली हाफ एन आवर, आई एम ओनली डिमांडिंग योर टाइम, योर कंटिन्यूटी। इफ यू कंटिन्यू योर सेल्फ विद मी नेक्स्ट 75 to 80 days, डेफिनेटली यू विल सी इनसाइड यू अ मेरिकल। हर बात समझ में? अच्छा, इंग्लिश ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं हम लोग, इंग्लिश ज़्यादा होगा ही। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आकर लाइक और अटेंडेंस, लाइक करके अपनी अटेंडेंस से देने के लिए और शेयर करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैलाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।